नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मलकानगिरी बंगाली समाज की तरफ से पटेरू हरि आश्रम प्रांगण में षष्ठ प्रतिष्ठा दिवस एवं पंचम वार्षिक साधारण सभा अनुष्ठित हुई। सबसे पहले भारत माता की फोटो चित्र पर डॉक्टर सुबोध विश्वास, निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति केंद्र सभापति गौरांग कर्मकार, मलकानगिरी बंगाली समाज की सभापति एवं MBS एडवाइजर ननी गोपाल हालदार ने दीप प्रज्वलन कर पुष्प माला अर्पित की। उसके बाद डॉक्टर गोपाल विश्वास ने सभा परिचालना की। मलकानगिरी बंगाली समाज की साधारण संपादक इंजीनियर निहार राय इस वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा दिया एवं मलकानगिरी बंगाली समाज मलकानगिरी के लिए क्या क्या कार्य किया उसकी भी जानकारी दी। इस मंच से निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के केंद्रीय सभापति डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा, मलकानगिरी बंगालियों को बांग्ला भाषा की समस्या है। मलकानगिरी बंगाली गांव के विद्यालयों में बांग्ला भाषा पढ़ाने की आवश्यकता है। बांग्ला किताब एवं बंगाली टीचरों की आवश्यकता है। ओडिशा सरकार से उन्होंने निवेदन किया जल्दी मलकानगिरी में बंगालियों के हित में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। MBBS के केंद्र उप सभापति एवं MBS मलकानगिरी के एडवाइजर निमाई चंद्र सरकार ने अपने अभिभाषण में कहा, मलकानगिरी बंगालियों को काफ़ी समस्याएं, देश को आज़ाद करने के पीछे बंगालियों की काफ़ी अवदान है। MBS के जिला सभापति गौरांग कर्मकार अपने भाषण में कहा, मलकानगिरी बंगाली समाज संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन, इस संगठन को इतने आगे पहुंचाने के पीछे सभी मलकानगिरी बंगाली माँ भाई बहन के अवदान है। इस सभा में मौजूद थे डॉक्टर सुबोध विश्वास, MBBS केंद्र सभापति, NBBS केंद्र उप सभापति। পরবর্তী মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছি আমাদের মালকানগিরি বাঙালি সমাজের সাধারণ সম্পাদক, মালকানগিরি বাঙালি সমাজের অ্যাডভাইজার শ্রী তপন কুমার শর্মা মহোদয়, যাকে মাল্যর্পণ করে আসন গ্রহণ MB 72 সভাকর্মী জোনের প্রেসিডেন্ট। অতিথি আমাদের মালকানগিরি বাঙালি সমাজের স্পোকপারসন প্রবক্তা মহোদয় শ্রী সুনীল কুমার বিশ্বাস মহোদয়কে আহ্বান করছি। পরবর্তী অতিথি হিসাবে আমাদের আপনাকে সম্বর্ধনা দিয়ে আসন গ্রহণের জন্য সহায়তা করবেন শ্রী উত্তম কুমার ওঝা মহোদয়, আপনাকে অনুরোধ করছি। আমাদের সংগঠনের সংরক্ষক উত্তম ওঝা মহোদয়কে আজ এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আসন গ্রহণ করে সভার গরিমা বাড়াবেন। মালকানগিরি বাঙালি সমাজের পেট্রন আপনাকে মাল্যর্পণ করে তপন কুমার বিশ্বাস সৃষ্টিধর হালদার মহোদয়। পরবর্তী অতিথি হিসাবে আজ এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন সমাজসেবী জানানোর জন্য শ্রী সমরেশ মৃধা মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আপনাকে সম্বর্ধনা দিয়ে আসন গ্রহণের জন্য সহায়তা করবেন শ্রী উত্তম কুমার ওঝা মহোদয়, আপনাকে অনুরোধ করছি। আমাদের সংগঠনের সংরক্ষক উত্তম ওঝা মহোদয়কে আজ এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আসন গ্রহণ করে সবার গরিমা বাড়াবেন।
সৃষ্টিধর হালদার মহালয়। পরবর্তী অতিথি হিসাবে আজ এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন সমাজসেবী জানানোর জন্য শ্রী সমরেশ মৃদা মহালয় অনুরোধ করছি। ঠাকুরের বাণী হোক, আমাদের মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিলীলামৃত দাবি আছে, সবই জিনিস তারা করতে পারবে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের লিটারেচার তারা উন্নত হবে। তার জন্য ধন্যবাদ জানাই প্রতিষ্ঠাতাকে। আজকের সভার মুখ্য বক্তা যিনি এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী নিমাই চন্দ্র সরকার মহোদয়কে আহ্বান করছি, আপনি মাইকে এসে আপনার বক্তব্য রাখবেন। সংগ্রহ করা যে আইডেন্টি কার্ডের জন্য যে 100 টাকা কি 120 টাকা করে আমরা 1 পয়সাও হাত দেইনি, সমান সেই টাকা আপনাদের ব্যাংকে সেইভাবে মজুদ আছে। কিছুদিন আগে আমাদের সংগঠনের কাজের জন্য দ্রুততর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার সম্মতিক্রমে এক্সিকিউটিভ কমিটির মত অনুযায়ী একটা কম্পিউটার আর একটা প্রিন্টার আমরা করে করছি। কথা আমাদের সম্পাদক যে বললেন আপনারা শুনেছেন। আমি সেই আজ এই এই সংঘটাকে করে এবং এই সংঘটাকে তৈরি করার পরে রেজিস্ট্রেশন করতে আমরা অনেকদিন যাবত আমরা চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করার পরে ঠিক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে এই কমিটিও যাওয়ার পরে কত বিলামি হয়েছে, তারপরেও আমরা সবাই মিলে লেগে পড়ে গেছে, কমিটি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। আজ আমি থাকবো না, কিন্তু আমাদের সমাজ দেখার মতোই থাকে না, এত নোংরা নোংরা ভিডিও তার মধ্যে থাকে। তার মধ্যে একটা বিশাল চ্যানেল চলছে আমাদের মালকানগিরি বাঙালি সমাজকে ধ্বংস করার জন্য হাতিয়ার বানানো হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়ে নোংরা নোংরা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, হিন্দু দেব দেবীর পরে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের কোন প্রকারই মন্তব্যকে আপনারা সঠিক মন্তব্য বলে গ্রহণ করবেন না। আজ আমরা যেন বলে আছেন, আজ সংকল্প নেওয়ার দিন, আজ প্রতিজ্ঞা নেওয়ার দিন। বাঙালি হয়ে জন্মেছি, বাঙালি হয়ে মরতে চাই। আরেকটা কথা, নিখিল ভারতের অনেক কথা বলেছেন নিমাইদা, আমার নামে এক গাদা প্রশংসা করেছেন। আজ যদি সারা ভারতে নিখিল ভারতের জয়গান হয়, তার যদি প্রথম সৈনিক হয়ে থাকেন তিনি নিমাই সরকার, আর কেউ নয়। উত্তরবঙ্গ গেছিলেন আপনারা, এই মালকানগিরি থেকে শত শত মানুষ, কালিদা আছেন, সুপদা আছেন, উমরপুরের লোক, কত ভাইরা, শত শত মানুষ তোমার দিল্লি গেছে, সবাই গেছে। নিখিল ভারতের আন্দোলন আপনার আন্দোলন। যদি এই জাতিকে বাঁচাতে চান, মালকানগিরি বাঙালি সমিতিকে জোরদার করুন। আর যারা নিখিল ভারত করেন তাদের কাছে আমার আপিল, মালকানগিরি বাঙালি সমিতি এবং নিখিল ভারত দেখার মতোই থাকে না, এত নোংরা নোংরা ভিডিও তার মধ্যে থাকে। তার মধ্যে একটা বিশাল চ্যানেল চলছে আমাদের মালকানগিরি বাঙালি সমাজকে ধ্বংস করার জন্য হাতিয়ার বানানো হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়ে নোংরা নোংরা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, হিন্দু দেব দেবীর পরে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের কোন প্রকারই মন্তব্যকে আপনারা সঠিক মন্তব্য বলে গ্রহণ করবেন না। আজ আমরা যেন বলে नमस्कार, आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुँचे मलकानगिरी जिला के पोटेरू हरि आश्रम में। यहाँ पे मलकानगिरी बंगाली समाज की तरफ से षष्ठ प्रतिष्ठा दिवस एवं पंचम वार्षिक जो साधारण सभा अनुष्ठित हुई है। तो यहाँ पे पहुँचे थे जो केंद्र जो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के केंद्र सभापति डॉक्टर सुबोध विश्वास जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, आज इतने दूर से संरक्षक है, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर,
मलकानगिरी आज तक जो मलकानगिरी के रेवेन्यू विलेज बंगाली गांव जो रेवेन्यू विलेज नहीं हुए, उसके उपरांत जो कई समस्या मलकानगिरी बंगालियों के ऊपर आए, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, आपने आज इस मीटिंग का सारांश ने पूरे भाषण में जो हमारे पदाधिकारी लोगों ने दिए हैं, उसकी एक ही मतलब था कि जो बंगाली लोग यहाँ पुनर्वासित है, जिन लोग बसवास कर रहे हैं, वो कोई भीख से नहीं, अधिकार से इस देश में आए थे। और आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं, परंतु समय समय पर हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमें अनदेखा किया जाता है, हमें अपशब्द से व्यवहार करके हमारे जाति को निंदा की जाती है। और आपने जो सवाल पूछे हैं कि बंगाली रेवेन्यू विलेज बनाना तय करना, ये जगह, ये सरकार, ये देश, ये उड़ीसा, ये जो भी शासन रहे, ये अपने राज्य की भूमि होता है। उस भूमि को विकसित करना उस राज्य सरकार की दायित्व है। वहाँ बंगाली रहे, वहाँ उड़िया रहे, वहाँ कोया रहे, ये फैक्टर नहीं है। वहाँ उनकी रेवेन्यू विलेज बनाने की एक आधार होता है। जो आधार है, आज अगर वो बंगाली का ग्राम हो, वो आदिवासी की ग्राम हो, वो उड़िया की ग्राम हो, या किसी भाषा भाषी के ग्राम हो, अगर उस ग्राम पात्रता रखता है, यदि उस ग्राम को नहीं बनाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये भेदभाव की बात है। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे मौजूद है जो निमाई चंद्र सरकार जी, जो पहले एमएलए रह चुके हैं मलकानगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, और वर्तमान जो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के उप सभापति भी है, केंद्र उप सभापति एवं मलकानगिरी बंगाली समाज के एडवाइजर भी है। आप ज़रा बताइएगा, इनके कहने के मुताबिक मलकानगिरी जिला में जो मलकानगिरी बंगाली गांव को जो ये रेवेन्यू मान्यता देने के एवज में, इसके अगेंस्ट में गया संप्रदाय के कुछ लोगों ने थाने में जो एफआईआर भी दिया, कुछ उनके मांग भी रखा, ये क्षति पहुंचेगी, इसके एवज में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो रेवेन्यू विलेज के लिए मैं खुद चिट्ठी किया था, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो चिट्ठी भी कलेक्टर को आया है 2018 में। तो वो चिट्ठी में कौन सी रूल से, कौन सी सेक्शन से रूल से कलेक्टर को एडवाइस दिया, तुम वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करो। इसमें कोई कंप्लेन किसी को सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है, रेवेन्यू विलेज जरूर डिक्लेयर होगा, जैसा उनका नियम है, नियम मुताबिक वो जरूर करेंगे। वो चिट्ठी कलेक्टर के पास है, मेरे पास, मैं आपको दूंगा वो चिट्ठी, अभी दे सकता हूँ। तो वो चिट्ठी भी आज निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के जो केंद्र सभापति यहाँ पे पहुँचे हैं, तो सर किस वजह से यहाँ पे पहुँचे और क्या क्या आपने यहाँ पे आने के बाद देखा, मलकानगिरी जिला में क्या क्या कमी जो बंगाली लोग में है? देखिए, हर इंसान जब जन्म लेता है तो उसका अपना घर में माँ अपना मातृभाषा में उसको अपना प्राथमिक जो भाषा सिखाती है, तो चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, सभी को अपना मातृभाषा में बोलने का, सीखने का अधिकार है। परंतु आज़ादी का 75 ईयर्स हो गया, उड़ीसा में रह रहे करीबन 30 लाख बंगाली रिफ्यूजी जो विस्थापित है, भारत सरकार इनको यहाँ पे पुनर्वासित दिया हमारा भाई लोग को। लेकिन संविधान में अधिकार रहने का बाद भी हमें हमारा बंगाली भाषा में प्राथमिक जो शिक्षा का अधिकार हमें नहीं है, जो सरासर संविधान का उल्लंघन है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं और उड़ीसा सरकार से हम आवेदन करते, हम जल्द से जल्द हमारा बच्चों को, जो नई पीढ़ी का जो बच्चा लोग शिक्षार्थी हैं, इनको बंगला भाषा में पढ़ने सीखने का अधिकार दिया जाए। और इस सिलसिला में यहाँ पे बहुत बड़ा बंगाली निखिल मलकानगिरी बंगाली समिति का ओर से बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया। इन लोगों ने मेरे को चीफ गेस्ट करके यहाँ पे बुलाया थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और नौजवानों ने यहाँ पे भरपूर अपना जोश दिखाया, अपना अधिकार के लिए मिट मरने के लिए तैयार है। देख के मुझे अच्छा लगा। उम्मीद है ये समिति और निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति दोनों मिलके पूरी उड़ीसा का जो बंगालियों का समस्या है, जमीन का पट्टा, बहुत सारे बंगाली है जो जंगली एरिया में रहता है मगर वो भूमिहीन है, उनका भी प्रॉब्लम है, उसको भूमि का पट्टा मिले, जमीन का राइट्स मिले, भाषा का राइट्स मिले। बहुत सारे लोग जो थे पहले जो भूषणपुर में थे, उनको यहाँ पे नागरिकता का प्रॉब्लम था। बहुत सारे लोग जो 71 के बाद आए, उनको नागरिकता नहीं मिला है। इस पूरी मुद्दा को लेकर हमारा लड़ाई चल रहा है 20 साल से। निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति, इसका हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस मुद्दा में बार बार दिल्ली में हम लोग आवाज़ उठाया, जंतर मंतर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिस कारण सीए पारित हुआ।
परंतु सीए पारित होने का बाद भी आज भी सीए लागू नहीं हुआ, जो दुखदायी है। हम चाहते हैं हमारा प्रत्येक हर रिफ्यूजी बंगाली जो अखंड भारत में कभी हुआ करता था, तुम हमारा मर्जी के खिलाफ बंगाल को तोड़ के हमें फकीर बनाया, हमें रिफ्यूजी बनाया, और हमें तुम ही बोलते हो भाई। जो बांटने वाला उसका जनरेशन जो अभी भारत में सरकार में है, इनका पूर्वज नहीं तो भारत बांटे थे, हम भारत बांटे नहीं। तो तुम्हारा जिम्मेदारी है, हमारा जो बंगाली है, जो शरणार्थी लोग है, जो 71 का बाद आया, जिसको नागरिकत्व हो नहीं हो, सभी को नागरिकत्व दिया जाए, बांग्ला भाषा का अधिकार दिया जाए। समन्वय समिति उड़ीसा की तरफ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर जल्दी इसको अगर अगले विधानसभा सत्र जो फरवरी मार्च में हो रहा है, इनके अंदर अगर बंगाली सब्जेक्ट नहीं हुआ, कोई हमारा दोस्त बोल रहा था होगा तो बहुत अच्छा, हम उसको बहुत प्रेस करेंगे। नहीं होगा तो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति दिल्ली में विधानसभा घेराव करेगा। फरवरी मार्च में जो सत्र होगा विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा घेराव होगा, उसमें हमारा जितना उड़ीसा का दाबी है उसमें दाबी पर है। और हमारा लिए इसके लिए सारा इंडिया का निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का हमारे प्रेसिडेंट का सारे इंडिया का लीडर भी वहाँ पे आए। धन्यवाद। अगर मार्च तक मलकानगिरी बंगाली गांव में बंगाली सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है, भाषा को मान्यता दी नहीं जाती है, और जो किताबों की अरेंजमेंट, टीचरों की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो आने वाले दिनों में विधानसभा घेरने की चेतावनी जो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति केंद्र जो उपसभापति निमाई चंद्र सरकार तथा मलकानगिरी बंगाली समाज के जो एडवाइजर निमाई चंद्र सरकार तथा तमाम जो मलकानगिरी के संघ जो केंद्र जो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के जो केंद्र सभापति डॉक्टर सुबोध विश्वास के तरफ से चेतावनी दी जा रही। तो आने वाले दिनों में सरकार को जल्दी से जल्दी इस प्रकार जो मलकानगिरी बंगालियों के हित में बंगालियों की और ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आने वाले दिनों में जो आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी इनके तरफ से दी जा रही है। उड़ीसा मलकानगिरी जिला पटरू हरि आश्रम से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।